Hello students, now the topic we have to study in this lecture is application of Gauss theorem, and one of the application of Gauss theorem is electric field intensity due to an infinitely long thin plane sheet of charge. Here thin word is important term, so we will differentiate thin and thick at the end of the lecture. So to calculate electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet, that plane sheet will be thin here. So let us consider we have infinite charged plane sheet of surface charge density sigma. It means the plane sheet which we are using in this particular system, the surface charge density is sigma. For this sheet we have to find out the electric field intensity of its surface. So first of all we will calculate the direction of the electric field due to this sheet. So see here, this is the plane sheet, ओके जिसका आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है. वी आर एबल टू सी ओनली द फ्रंट व्यू ऑफ द सीट एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट ये इनफाइनाइट लॉन्ग है अप टू प्लस इनफाइनाइट अपवर्ड एंड माइनस इनफाइनाइट डाउनवर्ड. सो इसके मिड पॉइंट या किसी पॉइंट ओ से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फील्ड देखते हैं. सो एट दैट पॉइंट we will find out the direction of the electric field. So here we are assuming a surface element, and as well as here also the surface element has area dA and this surface element also has the area dA. So according to surface charge density we know that the charge of this element will be sigma into dA, as well as at the for this element also the charge will be sigma into dA. So for this element the direction of electric field will be radially outward and away from to this, because this is positively charged. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में रहेगा ये, ओके, दैट इज DE1. सिमिलरली इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज DE2. ओके, now we will get the component of these electric fields. Okay, suppose with respect to this line which is passing through to origin and this point, this angle is theta, then downward angle भी क्या आपका theta. So with respect to angle theta we will divide into components to DE1 and DE2. Okay, so along to the direction we will get DE1 cos theta and DE2 cos theta, and perpendicular to this we will get DE1 sin theta and here DE2 sin theta. Okay, here we are taking the same area elements and the distance from this point to this is same. So the electric field due to this element and this element will be same but in different direction. कैसे कि ये इस डायरेक्शन में रहेगा और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में रहेगा. Okay, so the total resultant field due to this sheet will be DE1 cos theta plus DE2 cos theta radially outward or away from to this sheet, but DE1 sin theta and DE2 sin theta will be cancel out. So resultant field will be away from to this sheet and perpendicular to it. The direction of electric field due to this charged sheet is always perpendicular to its surface or along to normal unit vector of surface as shown in figure. ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर लिया, डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली. अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता
ये जो सीट है ये नेगेटिवली चार्ज होती, देन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स टू दिस सरफेस. Now to find the magnitude of electric field due to charge sheet, we have to draw a cylindrical Gaussian surface of length L और 2x भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, and cross sectional area A such that the sheet lies exactly mid of the cylinder. So यहाँ से देखिए, ये आपके पास में एक प्लेन शीट है जो पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, आप अपना नोटबुक इसे एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, यहां हम थिन की बात कर रहे हैं तो एक पेपर की बात कर रहे हैं. सपोज करो यहां पे हम नोटबुक का हमारा पेपर होता है, उस पेपर की बात कर रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. अब हम जो गाउसियन सरफेस एज्यूम करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि इसका पर्टिकुलर एक सरफेस जो है उस सिलेंडर को कवर कर जाए. ये देखिए, ये यहां से सिलेंडर स्टार्ट होके क्या हुआ, इसको क्रॉस करता हुआ बाहर की तरफ चला गया. ओके, द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस एज अ सिलेंडर, सो इट्स रेडियस इज r and its length is L. The field line remain straight, parallel and uniformly spaced. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो चार्ज आपका सीट है इसकी वजह से जहां पे भी फील्ड होगा वहां पे स्ट्रेट लाइन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी. ठीक है, पैरेलल होंगी सभी लाइंस एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी. मींस सपोज करो कि यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है. दोनों लाइंस के बीच अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो हर लाइंस के बीच में ही 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा. नाउ to calculate the electric field due to this sheet, we will assume some surfaces on the Gaussian surface. So first of all we are taking a surface at point A. So यहाँ देखते हैं कि जो सरफेस हमने A एज्यूम किया है इस पर्टिकुलर A सरफेस पे, मीन्स ये सिलेंडर का ये जो सर्कुलर शेप है ना, यहाँ पे सर्कुलर जो व्यू रहेगा उस व्यू की हम बात कर रहे हैं. तो उसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी आउटवर्ड एंड रेडियली. ठीक है, रेडियली किससे, इस सीट से. बाकी ये जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है उसके तो क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर रहेगा. जैसे ये रेडियस है तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर जाएगा कौन, सरफेस एलिमेंट का डायरेक्शन. तो यहां से देखिए ये ds वेक्टर इस डायरेक्शन में गया. इस पॉइंट पे प्रीवियसली हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव अगर चार्ज है तो यहां से क्या होगा, अवे फ्रॉम टू दिस, तो इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. सो फॉर ए पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड ds वेक्टर मींस एरिया एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. नाउ वी आर टेकिंग एट पॉइंट बी. तो बी पे जो सरफेस होगा उसके लिए सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन ये वाली रहेंगी और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा. ओके, now again here at point B the direction of electric field E vector and area element ds vector are in the same direction, so angle between both is 0 degree. Now we will take another point on the surface here this one. तो इस सरफेस के लिए डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एलिमेंट और एरिया एलिमेंट विल बी अपवर्ड टू दिस पॉइंट. तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ds वेक्टर एंड E वेक्टर यहां पे क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो फ्रॉम द गाउस लॉ d phi इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर सरफेस इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. q इज द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस. यहां पे चार्ज कौन सा ले रहे हैं, यहां तो बहुत सारा चार्ज है, तो यहां जो चार्ज हम लेंगे वो होगा जो इस शेप से, ये जो सिलेंडर का सर्कुलर शेप है इसमें कितना चार्ज है, और यहां का चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आगे देखते हैं. यहां पे सपोज करो आपके पास में एक प्लेन है, इस प्लेन पे आपने एक एरिया एलिमेंट एज्यूम किया दैट इज ds ऑफ चार्ज dq.
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल सरफेस। अब हमें कौन से सरफेस का चार्ज कैलकुलेट करना है जिसका एरिया कितना है? ds है। तो अगर s एरिया का चार्ज q है देन ds एरिया का चार्ज क्या हो जाएगा? फ्रॉम हियर सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds। ओके, तो सिग्मा क्या है? यूनिट एरिया का चार्ज है। देन ds एरिया का चार्ज क्या हो जाएगा? dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ds, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? q इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल सिग्मा इंटू ds। तो जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें जो हमने सरफेस जो कंटेन कर रहा है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उसका जो चार्ज होगा दैट विल बी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर शेप। So the charge for cylindrical Gaussian surface will be sigma into area of the circular shape which contains the charge in the plane sheet, that is pi r square। क्योंकि जो सर्कुलर शेप होगा उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो Q इक्वल टू हो गया सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम यूज करेंगे यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So again, according to Gauss law, this is the mathematical expression of the Gauss law. Now, for the whole surface, the electric flux closed integral or surface of E vector dot ds vector equals to at point A, at point B and at point C. C पॉइंट पे जो आपका एंगल है E वेक्टर और ds वेक्टर 90 है, बाकी A और B पॉइंट पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो कोस के साथ ओपन करेंगे, एंड कोस 90 फॉर C पॉइंट इज 0 एंड A और B पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा। ये देखिए, सो ये तो क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 एंड E एंड ds तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, बोथ विल ऐड एट सरफेस A एंड B। सो 2E विल कम आउटसाइड एंड इंटीग्रल और ds, तो जो सरफेस एरिया होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। जो इसका सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ऑफ द प्लेन शीट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या है यहाँ पे? सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, where sigma is surface charge density of the plane sheet. Now, according to Gauss theorem, 2E into pi r square equals to Q upon epsilon naught, और Q upon epsilon naught के लिए Q क्या हो गया यहाँ पे? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। कहां से आया? यहां से। So E equals to sigma upon 2 epsilon naught. This is the magnitude of electric field intensity due to a infinitely long plane sheet. Okay, ये आपका मैग्नीट्यूड है, और ये ध्यान रहे जो प्लेन शीट है वो अभी यहाँ पे क्या है? थिन है। इन वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म क्या होगी? आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। ओके, तो जो भी प्लेन शीट होगी वो नॉर्मली आउटवर्ड, और सॉरी मे बी इनवर्ड। तो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उसके लिए आउटवर्ड रहेगी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उसके लिए इनवर्ड रहेगी। ठीक है, अगर हम आई कैप की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। अदरवाइज आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, यहाँ पे एन कैप भी ले सकते हैं। नोट्स भी देख लेते हैं, सेम वही है जो हमने डिस्कस किया है। हमने मेनली जो फोकस करना है वो इस पॉइंट पे करना है। ये जो आपका सिलेंडर है वो यहां से इस प्लेन शीट को क्रॉस कर रहा है, तो हम सिर्फ इसी शीट का हम एरिया लेंगे। इस शीट का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ दिस शीट, और इस शीट का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। सो सेम ही हमने यहां पे किया है। तीनों सरफेस S1, S2 एंड S3 लिया है। S3 के लिए थीटा 90 एंड S1 और S2 के लिए जो थीटा था वो 0 डिग्री था। ओके, तो जो फाई बन गया वो आपका बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ओके तो अगर ये आपके पास में कुछ सीट हैं देन हमेशा ही अगर पॉजिटिव के लिए क्या रहेगा आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए क्या रहेगा इनवर्ड एंड इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर हम डायरेक्शन की भी बात करें सॉरी ग्राफ की भी बात करें देन ग्राफ इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजिशन वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन मीटर, तो क्या रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा एंड कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस एन के, प्लस इज फॉर पॉजिटिवली चार्ज प्लेन सीट एंड माइनस इज फॉर नेगेटिवली चार्ज सीट। इट मींस जब पॉजिटिवली चार्ज सीट होंगी तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा, ठीक है, यानी अवे फ्रॉम टू दिस सीट। एंड अगर नेगेटिवली चार्ज रहेगी देन द फील्ड विल बी टूवर्ड्स टू सीट या इनवर्ड टू सीट। यहां गिवन है पॉजिटिव साइन फॉर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टूवर्ड्स नहीं होगा आउटवर्ड होगा, ठीक है। ए वेक्टर इज आउटवर्ड टू सीट एंड नेगेटिव के लिए क्या रहेगा टूवर्ड्स टू सीट। और यहां से हमने देखा कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू ए प्लेन सीट देन डिस्टेंस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, किसी भी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे देन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सीट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स located nearby the seat will be same. The direction of electric field intensity is normal to the plane and away from the positive charge distribution, and for negative charge distribution it will towards to the plane. The electric field intensity is independent of the size of Gaussian surface. It neither depend on distance of point of consideration nor the radius of the cylindrical surface. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां हमने जो भी कैलकुलेट किया दैट इज फॉर थिन सीट, और थिन सीट को आप क्या कर सकते हैं अपना जो बुक है नोटबुक है उसके एक पेज के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। बट नाउ वी विल डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन थिन सीट और थिक सीट, और थिक सीट के लिए आप एज्यूम करेंगे अपना नोटबुक। तो अब नोटबुक जब हम एज्यूम करेंगे तो जो दोनों साइड सरफेसेस है उन पे हम चार्जेस मानेंगे, लेकिन जब हम एक पेज की बात करते हैं तो पेज पे तो एक ही पेज है, वो बहुत थिन पेज है, तो उस थिन पेज पे हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं चार्ज का वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, वन साइड डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। बट थिक प्लेन सीट के लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे दैट विल बी बोथ साइड्स। इसका मतलब जो आपने चार्ज के लिए सिग्मा इंटू ds किया था दैट विल बी ट्वाइस। If the plane seat is thick, then the charge distribution will be available on both the sides. So the charge enclosed within the Gaussian surface will be twice as before. Therefore, the field will be twice. तो जब E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Remember students, this electric field is due to thin plane seat and this electric field is due to thick charge plane seat. डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जो थिक है और जो थिन है, थिन के लिए कम और थिक के लिए ज्यादा। ओके तो थिन के लिए देखो हाफ अमाउंट में है और थिक के लिए आपका 1 यूनिट अमाउंट में। सो स्टूडेंट्स यहां पे आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल सी an example based on these sheets. Electric field intensity due to two parallel infinitely long thin plane sheets of charge. ये एज ए एग्जाम्पल भी आप कंसिडर कर सकते हैं और थ्योरेटिकल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी आपने प्रीवियसली जो स्टडी किया है वो एक प्लेन सीट के लिए स्टडी किया था, अब हम 2 प्लेन सीट के लिए स्टडी करेंगे। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको एक प्लेन सीट के लिए डेराइव करना है टोटली, एंड आगे जो करना है वो यहां से स्टार्ट करना है। केस 1 जो आप ले रहे हैं हियर, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन टू सिग्मा 2। हियर वी हैव ए प्लेन सीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड द नेक्स्ट वन इज
देखो इस सिग्मा 1 के लिए जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में रहेगा, तो पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर इसके लेफ्ट साइड की हम बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्सिस की तरफ जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में बात करें, इस रीजन में हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या रहेगा, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम टू दिस। नेगेटिव के लिए क्या होगा, टूवर्ड्स टू दिस शीट। नेक्स्ट आपने ये शीट लिया, ठीक है, जो भी वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, सिग्मा 2 जिसका चार्ज डेंसिटी है। तो इसके लिए जो फील्ड होगा ये क्या होगा, ये देखिए इधर की साइड में इस रीजन में देखते हैं, इन दिस रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम टू दिस, एंड इन दिस रीजन ऑल्सो, हियर ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम टू दिस पॉइंट। नाउ रीजन 1, इस रीजन में बात करें टोटल फील्ड, तो सिग्मा 1 की वजह से इस डायरेक्शन में एंड सिग्मा 2 की वजह से भी इस डायरेक्शन में, तो बोथ फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, सो बोथ विल बी एड अप। अब इन दोनों के बीच का जो रीजन है वहां बात करते हैं, तो ड्यू टू सिग्मा 1 क्या है, टुवर्ड्स टू दिस डायरेक्शन, एंड ड्यू टू सिग्मा 2 क्या होगा, टुवर्ड्स टू दिस डायरेक्शन। मीन्स both electric fields are anti-parallel to each other but not in equal in magnitude. Sorry, not equal in magnitude because sigma 1 is greater than to sigma 2. यहां पे sigma 1 ज्यादा है sigma 2 से। In the third region, electric field due to sigma 1 and sigma 2 both are in the same direction parallel to each other. So यहां पे क्या होगा, रीजन 3 में एड अप हो जाएंगी, ठीक है, सिग्मा 1 के लिए E1 एंड सिग्मा 2 के लिए E2 बोथ विल एड। तो इन द फर्स्ट रीजन E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां पे E1 ज्यादा है E2 कम है, देन E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, और here both will add sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon naught। अगर मान लीजिए दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होती, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होती तो ये क्या बन जाएगा, थिक की तरह बिहेव करेगा, थिक प्लेन शीट। मींस आपका जो नोटबुक है उसका फ्रंट कवर और जो बैक कवर है दोनों, सपोज ये फ्रंट कवर है और ये बैक कवर है, ओके, तो दोनों के लिए ही आपका क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंक्लूड हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर इक्वल हैं तो 0 आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब ये दोनों इक्वल है। ये केस हम आगे देखते हैं। केस 2, सिग्मा 1 इज पॉजिटिव एंड सिग्मा 2 इज नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम टू दिस, so electric field will be away from to this sheet for each and every point on the plane। तो E1 इस डायरेक्शन में और इसके लिए भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपने सीट लिया है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज के लिए क्या होता है, टुवर्ड्स टू दिस सीट, यानी सीट की तरफ आएगा। इस रीजन की भी बात करेंगे तो सीट की तरफ, इस रीजन की भी बात करेंगे तो सीट की तरफ। ये देखिए टुवर्ड्स टू सीट, इस रीजन की बात करें तो टुवर्ड्स टू सीट, इस रीजन की बात करें तो भी टुवर्ड्स टू सीट। नाउ रीजन 1 में क्या होगा, E1 एंड E2 आर एंटी पैरेलल बट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन, तो क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट जो फील्ड होगा वो होगा E1 माइनस E2। यहाँ पे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो बोथ विल एड अप। हियर बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सो बोथ will subtract, sorry, E1 वेक्टर ज्यादा है, E2 वेक्टर कम है, so E1 is greater than to E2, so magnitude of or the resultant of electric field will be E1 minus E2। यहाँ पे क्या है, दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में है, देन दिस वन। अब आप ये कहोगे कि सर इसके लिए तो माइनस आना चाहिए, नहीं, ये जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी नेगेटिव साइन के लिए ही है,
यहाँ जो भी डायरेक्शंस है वो ऑलरेडी जो भी है वो साइन की वजह से, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड है, तो वहां पे साइन खत्म हो जाता है। अब यहां पे आपने क्या लिया है, इक्वल लिया है। जब आपने इनको इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर लिया है तो प्रीवियसली केस बन जाएगा कि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां 0 आ जाएगा। यहां दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे फील्ड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पे सिग्मा क्या है सेम है, और यहां पे दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम टू दिस, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स टू दिस, तो इन दिस रीजन बोथ आर इन सेम मैग्नीट्यूड बिकॉज चार्ज डेंसिटी इज सेम, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस रीजन में दोनों ऐड हो जाएंगे और इस रीजन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अगर यहां पे मान लीजिए ये पॉजिटिव होता, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज होते, तो दोनों पॉजिटिव के लिए क्या होता, E1 वेक्टर की डायरेक्शन में E2 वेक्टर होता, तो दोनों क्या हो जाते ऐड हो जाते, और ऐड होते तो क्या बनते वो, ये वाला फॉर्मूला लग जाता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या होता, जब दोनों सेम चार्ज के होते तो इसके लिए दूर होता, इसके लिए भी दूर होता, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते, अपोजिट हो जाते तो यहाँ 0 हो जाता। और यहां पे भी क्या होते, यहाँ पे दोनों की वजह से अवे फ्रॉम टू दिस, तो अवे फ्रॉम टू दिस सीट्स होता, तो यहां पे क्या होता E1 और E2 ऐड हो जाता, और वो क्या बन जाता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।